already completed the topics of the lesson number 3, mountains, world mountains, block mountains, volcanic mountains and peak. Today I am start with the topic plateau. So you have to take your term book, first term book, and take the page number 229. Which page? Page number 229. Take this page, all of you, and take the topic. Which is the topic here? Plateaus. Plateaus. What is about plateaus? About plateaus. Look at the book. Plateaus are highlands but flat on the top like a table. You have to read about the Deccan Plateau in class 3rd. It is 500 to 1300 meters above sea level. But there are very high plateaus in between mountains called intermountain. Intermountain, that means intermountain. दोनों mountain के बीच वाला plateau, between mountains. Intermountain means दो mountain के बीच वाला plateaus. These are found in the Himalaya and the Alps mountains. Life in plateaus differ according to their height. Normal life is possible on the Deccan Plateau and the Chota Nagpur Plateau in India, which are not very high. The Tibetan Plateau is so high that it is called the roof of the world. The Bolivian Plateau in Andes is also very high above sea level. The air is thinner there and has little oxygen. It makes breathing difficult. Some plateaus such as the Chota Nagpur Plateau and the Brazilian highlands are rich in minerals. So look at the paragraph of plateaus. What about plateau के बारे में क्या बोला हुआ है? Plateaus are highlands. Highlands means जहाँ plains से भी ऊंचा और mountain से छोटा. But flat on top. और ऊपर जाकर mountain जैसा cone shape नहीं है, जब table जैसा shape है. Like a table. You have read about the Deccan Plateau के बारे में आप लोग 3rd standard में पढ़ चुका है. Oh, it is 500 to 1300 मीटर above sea level में से sea level के बराबर है plains. उससे भी ऊपर कितने 500 से लेके 1300 तक का मीटर above होता है plateau. But there are very high plateaus in between mountains. और mountain के बीच में भी plateaus है, वो ज़्यादा height वाला होता है. इसको क्या बोला जाता है? Intermountain. क्या बोलता है? Intermountain. Intermountain means दो mountain के बीच, between the mountains, बीच वाला mountain दो mountain के बीच में से ऊपर दिखाया गया plateau. ऊपर जाके उधर रह सकता है, वैसे प्लेन होता है. That is like a table called intermountain plateaus. These are found in the Himalaya और Alps और हिमालय में intermountain दिखाई देता है. These are found in the Himalaya and the Alps. Life in the plateau differ according to their height. जितने height ज़्यादा है उसके हिसाब से जैसे जैसे height बढ़ता है उस plateau के ऊपर का जीवन में बहुत सारे differences रहता है, वो वेरियस रहता है. That means रेनियस है का तरीका अलग होता है. नॉर्मल लाइफ इज पॉसिबल ऑन द डेक्कन प्लेटो और द छोटा नागपुर प्लेटो in India. इंडिया के प्लेटो में से नॉर्मल लाइफ दो ही प्लेटो में हो सकता है. फर्स्ट वन छोटा नागपुर प्लेटो और दूसरा है डेक्कन प्लेटो. वो इन दोनों प्लेटो में इंडिया में जितने भी प्लेटो उसमें जीवन हो सकता है. विच आर नॉट वेरी हाई, क्योंकि उसका इतना हाई है, इतना हाइट है. The Tibetan Plateau is so high that is called the roof of the world, which is called the roof of the world of Tibetan. Tibetan Plateau is called the what? Roof of the world. क्या बोला जाता है इसको? Roof of the world. World का roof, that means छत.
तो उसका ऊंचाई का तो आप इमेजिन कर सकते हैं ना कितना ऊपर होगा टिबेटन प्लेटो। टिबेटन प्लेटो कितना हाइट के ऊपर होगा तो आपको इमेजिन कर सकता है, क्योंकि 500 to 1300 तक का उसका हाइट होना चाहिए। और ये जो है सबसे ऊपर है, विच वन, टिबेटन प्लेटो जो है इससे भी हाइट में है, तो उधर का जीवन भी उसमें डिफरेंस होगा। टिबेटन प्लेटो इज सो हाई दैट इज कॉल्ड द रूफ ऑफ द वर्ल्ड। द बोलविन प्लेटो इन एंड्स, और दूसरा कौन सा है, बोलविन प्लेटो इन एंड्स इज ऑल्सो वेरी हाई अबव सी लेवल। सी लेवल में से जैसे टिबेटन प्लेटो वैसे भी ब्लो कौन सा है, बोलविन प्लेटो इन एंड्स माउंटेन्स। देन द एयर इज थिनर, देयर हैज लिटिल ऑक्सीजन। जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो एयर का प्रेशर कम होते जाएगा, तो उधर ऑक्सीजन लेवल भी कम हो जाता है। तो टिबेटन प्लेटो में आप जाएंगे तो आपको ऑक्सीजन साथ में ले जाना पड़ता है, आप इतनी देर तक उधर रह नहीं सकते, तभी आपको नीचे उतरना पड़ता है, क्योंकि उधर ऑक्सीजन लेवल कम होते जाएगा। द एयर इज थिनर, देयर हैज लिटिल ऑक्सीजन। थिनर एयर के अंदर ऑक्सीजन जितना आपको ब्रीथिंग के लिए चाहिए उतना मिलेगा नहीं, इट मेक्स ब्रीथिंग डिफिकल्ट, इसलिए ब्रीथिंग करना डिफिकल्ट हो जाएगा। तो ये जो बोलविन प्लेटो और टिबेटन प्लेटो में लोग नॉर्मल जिंदगी जी नहीं सकते। Some plateaus such as the Chotanagpur plateau and Brazilian highland are rich in minerals। और कोई जो प्लेटोस होता है मिनरल्स से रिच भी है, तो भरा हुआ है मिनरल से, उसके सोइल के अंदर बहुत सारे मिनरल्स भरा है, दैट मीन्स उसमें से हम लोग निकाल सकते हैं। Some plateaus such as the Chotanagpur in India plateau and Brazilian highland are rich in mineral। These are about this explanation are about the plateaus. This is about the plateaus. Okay. Now the next one, what is the heading? कौन सा है, passes। What is the meaning of passes? What is about passes? Look at the book. The mountain ranges are sometimes so high that it is very difficult to cross them। माउंटेन जो इतना हाई होता है उसको ऊपर चढ़ के दूसरी तरफ जाना मुश्किल हो जाता है। देयर आर नैरो पैसेजेस और गैप्स बिटवीन द माउंटेन। तो दो माउंटेन के बीच में, लुक हियर, ये एक माउंटेन है, एक माउंटेन है, इन दोनों के बीच में इधर से मुझे चढ़ के इधर आना है, तो इतना ऊपर चढ़ने के बाद हम इधर आ सकते हैं। तो इन दोनों के बीच में से इधर आने के लिए, इधर से आना तो भी हम लोग इधर से चढ़ के इधर आने के लिए मुश्किल होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों के बीच में एक छोटा सा गैप रहता है ना, इसको एक रास्ता बनाया जाता है, उसको बोलते हैं, ये जो बीच वाला रास्ता होता है उसको बोलते हैं पासस। क्या बोलते हैं उसको, पासस। दो माउंटेन के बीच में जो एरिया होता है छोटा सा, उसको बोला जाता है पासेज। देयर आर नैरो पैसेज और गैप्स बिटवीन द माउंटेन्स, दीस आर कॉल्ड। इन दोनों के बीच में, तो इन दोनों के इधर से इधर आने के लिए इधर आ सकता है, और इधर से इधर आने के लिए ऐसे आ सकता है, और इस तरफ से उस तरफ जा सकता है, उसको बोलते हैं दूसरी तरफ जाने के लिए उस रास्ता यूज कर सकते। दीस आर कॉल्ड पासेज। दे हेल्प द पीपल टू क्रॉस द माउंटेन्स। माउंटेन क्रॉस करने के लिए पासेज हेल्प करता है। द हिंदू कुश एंड Sulayman mountains to be northwest of India, that is in Pakistan, have passes such as the Khyber and Bolan। इन दोनों का passes का नाम क्या है, Khyber and Bolan। The Himalaya have passes such as the Shipkila, Nathula and Zojila। तीन passes का नाम कौन कौन सा हिमालय का, Shipkila, Nathula and Zojila। These are the three passes in Himalaya। ओके, दिस इज द पिक्चर ऑफ पासेस। तो दो तीन माउंटेन इधर दिखाया, उसके बीच में से एक गैप जा रहा है, उसको बोलते हैं पासेस। दैट इज अबाउट पासेस। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट इज द नेक्स्ट टॉपिक, लुक एट द बुक। व्हाट क्या है, वैली, yes, valleys। What about valleys? Look, the low-lying area between two mountains is called valley। Sometimes it is carved out of the ground by a river flowing through it।
The river makes the valley fertile. Kashmir, Himachal Pradesh and Switzerland have beautiful valleys. आप लोग कभी बस से माउंटेन एरिया से बस के ऊपर से चलते हो तो बस में बैठ के आप नीचे देखो माउंटेन के ऊपर चढ़ के तो आपको नीचे एकदम डीप बॉटम दिखाई देगा, तो जहाँ देखने को भी आपको डर लगता होगा ना, उस एरिया को बोला जाता है वैली। जब माउंटेन के ऊपर जाने के बाद आप नीचे देखो, उसके नीचे का जो प्लेस होता है, वो जो पार्ट होता है उसका, उसको बोला जाता है वैली। एक माउंटेन है, उसके ऊपर आपका रोड जा रहा है, ऐसे 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 इधर जाकर आप देखो तो इस तरफ भी वैली होगी, इस तरफ भी वैली होगा, इधर होगा इसका वैली। उसमें से रिवर जाता होगा या फिर स्प्रिंग जाते हुए से छोटे छोटे नदियाँ जाते हुए। लो लाइन एरिया बिटवीन टू माउंटेन, दो माउंटेन के बीच में ये एरिया होता है, उसको बोलते हैं वैली। इट इज कार्व्ड आउट ऑफ रोड बाय ए रिवर फ्लो। कैसे बनता है वो? बार बार नदी बहने की वजह से ऐसे वैलीज बनता है। द रिवर मेक्स द वैली फर्टाइल। और जो रिवर अपने साथ इतनी ऊपर का मिट्टी लाता है और इसलिए वो फर्टाइल भी होता है। कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एंड स्विट्जरलैंड हैव ब्यूटीफुल। कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में और स्विट्जरलैंड में बहुत सारे ब्यूटीफुल वैलीज हैं। ये हो गया वैलीज के बारे में। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, छोटे छोटे एक्सप्लेनेशन, ये ज़्यादा नहीं है आपके लिए। ओके, प्लेन्स। व्हाट अबाउट प्लेन्स? जहाँ हम लोग रहते हैं उसको बोला जाता है प्लेन्स। हम लोग कौन सी एरिया में रहते हैं? ज़्यादातर हम लोग प्लेन्स में रहते हैं। Plains are comparatively flat land with gentle slopes. छोटे छोटे slopes होता है, वो इतनी important नहीं है। Plains always have a higher population than mountains region because it is easier to build cities and grow crops in plains. क्योंकि माउंटेन एरिया से कंपेयर करें तो प्लेन्स एरिया में लोग ज़्यादातर रहता है, क्योंकि सिटी बसाने के लिए या टाउन बसाने के लिए इसी होता है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन के लिए इसी होता है, घर बनाने के लिए इसी होता है, इंडस्ट्री करने के लिए भी इसी होता है। प्लेस वेयर वेरी हायर पॉपुलेशन, ज़्यादातर लोग उधर रहते हैं, पॉपुलेशन ज़्यादा होता है। माउंटेन रीजन बिकॉज इट इज इजियर टू बिल्ड सिटीज एंड ग्रो क्रॉप्स, और खेती बाड़ी कल्टीवेशन भी कर सकता है। देयर आर नॉट टू हाई अबव द सी लेवल। सो प्लेन्स जो है सी लेवल्स में से इतना हाई, प्लाटो जितना भी हाई नहीं है। मेनी प्लेन्स हैव बीन फाउंड बाय द सिल्ट बोर्ड बाय रिवर्स। ज़्यादातर प्लेन्स कैसे बनता है? जो रिवर्स मिट्टी ले आता है, सिल्ट ले आता है ऊपर से माउंटेन में से, वो आते 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 क्या बनता है? प्लेन्स बनता है। The Indo-Gangetic plains of North India were formed by the Indus, the Ganga and their tributaries. तो इंडो गंगाटिक प्लेन जो है इंडिया का सबसे बड़ा प्लेन एरिया है। दैट मीन्स प्लेन वर्ल्ड लैंडफॉर्म में सबसे बड़ा है इंडो गंगाटिक प्लेन। इंडो गंगाटिक प्लेन में वो कैसे बना है? कौन सा है? इंडो गंगाटिक प्लेन एरिया। ये जो है कैसे बना है? कौन कौन से रिवर के वजह से बना है? गंगा रिवर ने स्लिट लाके डाला है। द इंडो गंगाटिक प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया वेयर फॉर्म्ड बाय द कौन कौन सा? इंडस रिवर। कौन कौन सा रिवर की वजह से? इंडस, देन गंगा एंड इट्स ट्राइब्यूटरीज, का शाखा, उसका ट्राइब्यूटरीज मिलके बना है इंडो गंगाटिक प्लेन। इंडस नदी और गंगा नदी और उसका जितने भी ब्रांचेस होते हैं, इतनी नदी ने स्लिट डाल के बनाया है इंडो गंगाटिक, सबसे इंडिया का सबसे बड़ा प्लेन एरिया। ओके, वेयर वर्ल्ड्स लैंडफॉर्म। Indo-Gangetic plain in North India were formed by the Indus, the Ganga and their tributaries की वजह से बना है। That is about the plains. Now about next topic. What is the next topic? Deserts. What is the meaning of desert? You know? What is the meaning of desert? रेगिस्तान, क्या बोलते हैं उसको?
डेजर्ट को बोलते हैं रेगिस्तान। रेगिस्तान में क्या होता है, बहुत कम रेनफॉल होता है और ड्राई एरिया होता है, ड्राई एरिया भी होता है और इतना वेजिटेशन भी नहीं होता। तो लुक एट द पैराग्राफ डेजर्ट टॉपिक। डेजर्ट्स आर ड्राई प्लेसेस विथ वेरी लिटिल रेनफॉल, बहुत कम से कम रेनफॉल होता है। वेरी फ्यू प्लांट्स कैन सर्वाइव द हीट एंड द ड्राइनेस, बहुत कम प्लांट्स होता है उधर सर्वाइव करने वाला, ज़्यादातर कैक्टस होता है ना, कैक्टस होता है सर्वाइव द हीट एंड द ड्राइनेस, ड्राइनेस की वजह से ज़्यादा वेजिटेशन नहीं होता। ओनली सम प्लांट्स सच एज द कैक्टी व्हिच कैन स्टोर वाटर इन द थिक स्टेम ग्रो हियर, सबसे ज़्यादा कैक्टस वाला प्लांट भी उधर होता है क्योंकि वो अपने लिए पानी जमा कर सकता है अपने स्टेम में, व्हिच कैन स्टोर वाटर थिक स्टेम ग्रो हियर। डेजर्ट कैन बी रॉकी एंड सैंडी, डेजर्ट जो है रॉकी भी हो सकता है, सैंडी भी हो सकता है। दे कैन गेट वेरी हॉट इन समर, समर में इतने गर्मी, बट इन नाइट द टेम्परेचर ड्रॉप रैपिडली, जैसे ही रात होने लग जाता है टेम्परेचर कम होते जाता है डेजर्ट एरिया में। द थर्ड इन इंडिया, इंडिया का कौन सा है, थर्ड डेजर्ट कौन सा है, थर्ड इन इंडिया। वेयर आर द थर्ड, वेयर इज द थर्ड डेजर्ट, राजस्थान में। कहाँ पर है, राजस्थान में, राजस्थान स्टेट में है थर्ड रेगिस्तान, द थर्ड डेजर्ट। द थर्ड इन इंडिया द सहारा इन कलहरी, और दूसरा कौन सा है, सहारा, ये जो है इंडिया में है डेजर्ट, कलहरा, सहारा इन कलहरा, कलहरा इन अफ्रीका, कहाँ से कौन से कंट्री में है, कॉन्टिनेंट में अफ्रीका में, अफ्रीका एंड अटाकामा इन साउथ अमेरिका, अटाकामा। साउथ अमेरिका आर सम हॉट डेजर्ट, ये तीनों जो है थर्ड, सहारा, अटाकामा, इन सबको कौन सा डेजर्ट बोला जाता है, हॉट डेजर्ट। These are the main hot desert in the world. Which are the hot desert in the world? Third in India, Sahara in Africa, Atacama in South America are the hot desert in the world. World का तीनों hot deserts है ये तीनों. And the Atacama in South America are some hot deserts. Temperature in the Sahara can go up to 55 degrees Celsius. यहाँ तक हो सकता है 55 डिग्री सेल्सियस तक सहारा का जा सकता है। एंड ड्रॉप बिलो फ्रीजिंग पॉइंट, और ठंडा होता होता है फ्रीजिंग पॉइंट में भी, दैट मीन्स 0 डिग्री में भी आएगा। द गोपी डेजर्ट इन चाइना इज ए कोल्ड, और एक डेजर्ट के बारे में बताया है, गोपी डेजर्ट। गोपी डेजर्ट कहाँ पर है, ये चाइना में है, और कैसे है ये, दिस इज द कोल्ड डेजर्ट, कैसे है, कोल्ड डेजर्ट इन द वर्ल्ड, कोल्ड डेजर्ट है गोपी इन चाइना, गोपी इन चाइना इज ए कोल्ड, गोपी डेजर्ट इन चाइना इज ए कोल्ड डेजर्ट। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया इज ऑल्सो ए डेजर्ट, और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया भी एक डेजर्ट है, पर ज्यादातर हम लोग डेजर्ट के नाम लेगा तो इन तीनों का हॉट डेजर्ट में रहता है, और गोपी का चाइना का, गोपी इन चाइना का कोल्ड डेजर्ट में रहता है। विच आर द हॉट डेजर्ट्स, थर्ड इन इंडिया, सहारा इन अफ्रीका, अटाकामा इन South America are hot deserts. The Gobi in China is a cold desert. Okay, these are the explanation about deserts. Now the next, this is the next topic, peninsula. What is the meaning of peninsula? Next topic, peninsula. What is about peninsula? Look at the paragraph. A peninsula is land surrounded by seas on 3 sides. The southern part of India is a peninsula. The largest peninsula in the world is the Arabian Peninsula. Italy, Greece and Korea are all peninsulas. Locate them on a map.
ऑफ द वर्ल्ड मैप में आपको दिखाई देंगे। पेनिनसुला कौन कौन सा है वर्ल्ड मैप, और इंडिया इज ए पेनिनसुला, इंडिया का साउथर्न पार्ट इज ए पेनिनसुला, इंडिया का जो साउथर्न पार्ट होता है वो एक पेनिनसुला है। ओके, पेनिनसुला का मीनिंग क्या हुआ, पेनिनसुला का मीनिंग ये हुआ लैंड सराउंडेड बाय, इंडिया का लैंड इस एरिया में, दिस इज द पार्ट ऑफ इंडिया साउथ पार्ट है ना, साउथ पार्ट ऑफ इंडिया, इधर भी सी, इधर भी सी और इधर भी सी, तीनों तरफ सी है और बीच में लैंड है। तो वही लिखा है पेनिनसुला इज ए लैंड सराउंडेड बाय सीज ऑन 3 साइड्स, 1 2 और 3, तीनों तरफ क्या है सीज है और बीच में लैंड है, उसको बोला जाता है पेनिनसुला, उसको बोला जाता है पेनिनसुला। तो तीनों तरफ समुद्र और बाकी बीच में लैंड आता है, उसको पेनिनसुला बोला जाता है। द साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया, इंडिया का साउथर्न पार्ट है, तो इंडिया का साउथर्न पार्ट का पेनिनसुला है। द लार्जेस्ट पेनिनसुला वर्ल्ड इज द अरेबियन पेनिनसुला, सबसे बड़ा पेनिनसुला कौन सा है, अरेबियन पेनिनसुला। और इटली, ग्रीस एंड कोरिया आर ऑल्सो पेनिनसुला, इटली और ग्रीस और कोरिया ऑल्सो आर ऑल्सो पेनिनसुला, ये सब पेनिनसुला है। लोकेट देम ऑन द मैप, वर्ल्ड मैप देखे तो ये सब कंट्री देखो आपको पता चलेगा, इंडिया जैसा ही वो भी तीनों तरफ से पानी से कवर किया हुआ पेनिनसुला है। और इंडिया का सबसे बड़ा अरेबियन पेनिनसुला है, सबसे बड़ा पेनिनसुला, वो आप लोगों को इधर पिक्चर में दिखाया है, इंडिया का साउथर्न पार्ट, इधर श्रीलंका दिखाया है, इंडिया का साउथर्न पार्ट का पेनिनसुला दिखाया है। ओके, दैट इज अबाउट पेनिनसुला। नाउ बेस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बे, सुना आपने बे ऑफ बंगाल के बारे में, तो बे क्या होता है, नेक्स्ट टॉपिक बे, बेस। Look at the paragraph. A bay is water surrounded by land on 3 sides. It is the opposite of peninsula, peninsula का opposite. That means ये जो है इधर दिखाया पिक्चर, ये बीच में क्या है, वाटर या सी, कुछ भी हो, सी होगा है ना, और इधर क्या होता है, तीन और लैंड, लैंड लैंड लैंड, तो किसका ऑपोजिट हुआ, पेनिनसुला का ऑपोजिट हुआ, बीच में वाटर और तीनों ओर लैंड। पेनिनसुला क्या था, बीच में लैंड और तीनों ओर वाटर, तो उसका ऑपोजिट, पेनिनसुला का डायरेक्ट ऑपोजिट प्रोसेस है किसका, बे का। ए बे इज वाटर सराउंडेड लैंड ऑन 3 साइड्स, इट इज द ऑपोजिट ऑफ पेनिनसुला। द बे ऑफ बंगाल एंड द बे ऑफ बिस्के नियर फ्रांस आर एग्जांपल। बे ऑफ बंगाल आप लोगों का इंडिया में बे ऑफ बंगाल, दैट इज ए एग्जांपल ऑफ बेस, बेस का एग्जांपल है बे ऑफ बंगाल। हमारे बे ऑफ बंगाल के बीच में कौन से लैंड आया है, बीच में पानी आ चुका है, तीनों ओर क्या है, 3 साइड में क्या है, लैंड है और बीच में वाटर, उसको बोलते हैं बेस, उसको बोला जाता है बेस। दैट मींस ऑपोजिट ऑफ पेनिनसुला, पेनिनसुला में बीच में लैंड है, तीनों ओर वाटर है, और बेस में बीच में वाटर है, तीनों ओर लैंड है। ओके, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन बे एंड पेनिनसुला। नाउ नेक्स्ट आइलैंड, व्हाट अबाउट आइलैंड्स, yes, आइलैंड्स के बारे में क्या है, an island is land surrounded by water on all sides। क्या बोलता है आइलैंड, दिस इज ए लैंड, ये क्या है, लैंड है और इसके इधर भी वाटर, चारों ओर क्या है, वाटर 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 और वाटर, चारों ओर पानी और बीच में लैंड, इसको क्या बोला जाता है, एन आइलैंड, इसको बोला जाता है, दिस इज कॉल्ड एन आइलैंड। An island is land surrounded by water on the all sides. In India, Andaman and Nicobar and Lakshadweep are groups of islands. Sri Lanka is an island. Sri Lanka एक island country है और इंडिया का 2 ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड
in Indian Ocean, in Indian Ocean, or Sri Lanka or Lakshadweep in Arabian Sea. Sri Lanka is an island. Japan and Great Britain are also islands. Great Britain or Japan be island. Greenland is the biggest island in the world. Which is the biggest island? Greenland. Greenland is the biggest island. वर्ल्ड में सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है? ग्रीनलैंड. इंडिया का कौन कौन सा है आइलैंड्स? अंडमान निकोबार आइलैंड्स एंड और कौन सा है? विच वन? अंडमान निकोबार आइलैंड, बे ऑफ बंगाल एंड देन लक्षद्वीप, अरेबियन सी. Okay, this is about island. Now about lakes. Next topic is lakes. The next topic is lakes. लेक्स के बारे में आप लोगों को पता ही है. What are lakes? Lakes are water bodies surrounded by land. There are many lakes in Canada, USA and Europe. The Caspian Sea is not a sea. It is actually a lake. The largest lake in the world. कौन सा है? Caspian Sea. लेक क्या होता है? हम लोगों ने आइलैंड बोला था, बीच में लैंड और चारों ओर वाटर. उसी का ऑपोजिट, बीच में वाटर और चारों ओर लैंड, इसको बोला जाता है लेक. बीच में वाटर और चारों ओर आइलैंड, इसको बोला जाता है लेक. इसको बोलते हैं इसी से लेक. बीच में पानी और चारों ओर लैंड, इसको बोला जाता है लेक. और इंडिया का कौन सा? देयर आर वाटर बॉडीज सराउंडेड बाय लैंड. देयर आर मेनी लेक्स इन कनाडा, यूएसए एंड यूरोप. The Caspian Sea is not a sea. It is actually a lake, the largest lakes in the world. Which one? Caspian. Caspian Lake is the largest lake. The largest lake in the world. This is the largest lake. Caspian Lake is the, that is not a sea. Caspian Sea बोलते हैं पर actually वो है लेक है. वो है वर्ल्ड का सबसे बड़ा लेक. ओके, दैट इज अबाउट लेक. देन द लार्जेस्ट लेक इन इंडिया इज द चिलिका लेक. पुलिकट, दाल एंड सांबार आर अदर लेक्स इन इंडिया. इंडिया का सबसे बड़ा लेक कौन सा है? चिलिका लेक. इंडिया का सबसे बड़ा चिलिका लेक. चिलिका लेक इज इंडियाज लार्जेस्ट लेक. और कौन कौन सा लेक इंडिया में है? पुलिकेट, दाल एंड सांबार आर अदर लेक्स इन इंडिया. ये सब इंडिया का लेक्स है. द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड इज लेक सुपीरियर. फ्रेश वाटर लेक में सबसे बड़ा है लेक सुपीरियर ऑन द यूएसए कनाडा बॉर्डर. यूएसए कनाडा बॉर्डर में है लेक सुपीरियर. किस लेक? लेक सुपीरियर. That is in Canada और अमेरिका के बॉर्डर में है. Then US Canada border. Lake Victoria in Africa and Lake Baikal in Russia are famous. Baikal is the deepest lake in the world. Which is the deepest lake? Baikal is the deepest lake in the world, and Lake Superior is the biggest world freshwater lake. Freshwater lake में Lake Superior सबसे बड़ा deepest कौन सा है? बेकल लेक. डीपेस्ट लेक है बेकल लेक और फ्रेश वाटर लेक है सुपीरियर और कैप्सिकल लेक है सबसे बड़ा लेक इन द वर्ल्ड. ओके, these are about lake. Now the next topic. अबाउट रिवर्स. अब दिया गया है रिवर्स के बारे में. ओके,
Now I am going to wind up the video here. So हम लोग next rivers, waterfalls, deltas, estuaries, isthmus and straits के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. अभी आप लोग इतने टॉपिक के बारे में पढ़ना है आपको, और आपको बनाना है एक पेनिनसुला बनाना है, एक बे बनाना है, उसके साथ एक आइलैंड और एक एबी क्या बनाना है, लेक भी आपको बनाना है पिक्चर ड्रॉ करके, क्योंकि मैंने अभी इन सभी के बारे में ड्रॉ किया था, तो आपको भी इन सब के बारे में ड्रॉ करना है अपने होमवर्क में. ओके, सो नोट डाउन योर होमवर्क ऑल ऑफ यू. अपने हिसाब से आप लोग हार्ड वर्ड्स लिखेंगे और रीड करना है लेसन. Write down the homework of this video. Read the lesson 3 2 times. Then find out the hard words. Hard words of this part. जो आज मैंने एक्सप्लेन किया है, इतने वर्ड्स का आप लोगों को फाइंड आउट करके आपको लिखना है. ओके, दिस इज फॉर योर होमवर्क. जितना पार्ट करवाया है पेज नंबर 232 तक लेक तक का आपको फाइंड आउट करके अपने 0 नंबर बुक में लिख के पोस्ट करना है. वन टाइम कितने बार लिखना है, आपको लगेंगे ये मेरे लिए हार्ड है, तो वो वर्ड लिख के आपको पोस्ट करना है अपने होमवर्क में. ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बाकी जितने भी पार्ट्स हैं उसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे. सो टिल द नेक्स्ट वीडियो, हैव ए नाइस डे.